Good morning, students. It's Kumud Ranjan Jha, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Station, Hindon. You're welcome in 12 accountancy class, and we are doing chapter Dissolution of Partnership Firm, chapter 8. In previous classes, what we have done, we have completed almost 90% of syllabus of this chapter. We have did the theory portion of this chapter. We have discussed the journal entries. We have discussed the workman compensation reserve. We have done the accounting treatment of realization expenses in different circumstances. Today we will do the accounting, the account, how to prepare the account. If the question is comprehensive, how to prepare the account. First, we will prepare loan by firm to partner account, then loan by partner account, partner's capital account, and treatment of goodwill. Let's start with the loan by partner account. Means partner has given to the loan to the firm. Loan by partner to firm is not an outsider liabilities. This is very important word. Therefore, it is not transferred to realization. ये realization में transfer नहीं होगा. It is also not transferred to the partner's capital. Why? This is loan, not the part of the capital. Again no. It is paid. इसकी क्या होगी? Payment होगी by the bank after payment of outsider liability but before repayment of the partner's capital. जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है उसके पेमेंट के बाद और जो कैपिटल पेमेंट है उसके पेमेंट से पहले. एंट्री वुड बी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बैंक और कैश फर्म से जा रहा है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. नेक्स्ट अकाउंट इज loan by firm to partner account. Loan by firm to partner. Loan by firm to a partner is an asset. Most important thing is this is an asset for the firm. It is transferred to the debit side of partner's capital. Asset का balance always debit. तो पार्टनर्स कैपिटल में से ट्रांसफ़र जब करेंगे तो ये डेबिट साइड आएगा एंड एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट. Then we have capital account. Before starting the capital account treatment, what we have to recap. इन फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस चैप्टर को तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि देयर आर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयरिंग के 2 मेथड्स होते हैं. कैपिटल अकाउंट है, इसको प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स हैं? 2. कौन कौन से? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैप मेथड, कैपिटल मेथड, एंड देन द फ्लक्चुएटिंग capital method. Fluctuating capital method. In fluctuating capital method, we are posting all the amount rated with the capital in one account. एक ही अकाउंट में हो जाता है. But here we are preparing 2 different accounts. First is capital and interrelated to capital. Opening balance and fresh capital introduced and closing balance. And other than these 3, whatever remaining amount and item is related with the capital transferred to the current account. If a firm is following the fluctuating capital method, then there is no problem. We will open a capital account and settle all the amount of the partners.
But if the company is preparing or following the fixed capital method, then we have two accounts, capital account and current account. Now the thing is coming, how we are going to transfer the balance of a current account of a partner, कि पार्टनर के जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो उसके कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होगा. नाउ लेट्स सी. In case of debit balance in a current account of a partner, यदि किसी के पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मीन्स करंट अकाउंट पहले बंद होगा, कैपिटल बाद में बंद होगा. पहले तो मैं ये समझना ज़रूरी है. तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में. द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल गोज टू द कैपिटल अकाउंट. If balance is debit, okay, then entry would be concerned partner capital account debit to partners current account. Current typing mistake है. Concerned partners capital account debit to concerned partners current account. And then the second case, in case of credit balance in current account of a partner, यदि किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है. तो एंट्री क्या हो जाएगी? कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बस वाइस वर्सा वो रिवर्स होना है दोनों में. लेकिन बस हमें ये याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज करंट अकाउंट, देन वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट इज़ द, अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी. हमने रियलाइजेशन बनाया, सारे एसेट्स वगैरह ट्रांसफ़र किए थे, एंट्री समझा चुकी हूँ आपको. हमने कैपिटल बनाया, करंट बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हम रियलाइजेशन में जिसकी हमने एंट्री नहीं की थी और करंट अकाउंट में भी जिसकी एंट्री नहीं की है. तब उन सारे आइटम्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? द टॉपिक इज़ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. तो लॉसेस की एंट्री अलग और रिज़र्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एक जैसी, क्योंकि रिज़र्व इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. रिज़र्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ द फर्म इज़ ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल. ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि इससे उसकी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है. और जो चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं वो चीज़ें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी. एंट्री इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्लीज़ सी केयरफुली, दिस इज़ द क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल. प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व को भी डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल. देन इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इफ देयर इज़ अ लॉस, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. किसकी बात हो रही है? डेबिट बैलेंस मीन्स इट इज़ लॉस. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिटियस एसेट्स. जो रिजर्व है हमारा, जो हमने वहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया है, किस में? रियलाइजेशन में. लेकिन बोला था ना, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स एंड कैश, तो वो अब यहाँ हम देंगे, क्योंकि हमें एक भी अकाउंट रखना नहीं है. ये रिजोल्यूशन का नियम ही है. इट्स अ डेथ वारंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ख़त्म हो रही है, फर्म, तो अब कुछ भी रखना नहीं है, तो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो. अब कम ऑन द रियलाइजेशन. ट्रांसफ़र ऑफ रियलाइजेशन, गेन और प्रॉफिट. इन केस ऑफ प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड देन इन केस ऑफ लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. लाइक दिस. सपोज़ ये हमने रियलाइजेशन बनाया, तो इस साइड क्या आएगा? पेमेंट्स, और यहाँ क्या आएंगे? रिसिप्ट्स.
या उल्टा है? यस, इट्स अपोजिट। सारे रिसीविंग्स कैश इधर आएंगे और इधर क्या आ जाएगा? पेमेंट। ये हो गया पेमेंट। ये हो गया पेमेंट। इफ द रिसिप्ट इज हायर, सपोज रिसिप्ट इज 100 and payment is ₹90, 10 is profit, तो 2 partners capital realization account debit 2 partners capital for profit, कर दी एंट्री। if we have लॉस के केस में कैसे होगा? ये क्या था हमारा? रिसिप्ट्स। ये क्या था? पेमेंट्स। लॉस कब होगा? व्हेन पेमेंट इज सपोज 100 एंड रिसिप्ट इज ₹80। रिसिप्ट कम है, ट्रांसफ़र किया तो 20 रुपीज़ का क्या है? लॉस। किसको जाएगा? पार्टनर्स को, बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रूफ हो गई एंट्री। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू मे राइट इन ए कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, फॉर फाइनल सेटलमेंट विथ पार्टनर। Actually in dissolution case we have to settle all the account, close all the account. So अब पार्टनर का भी अकाउंट हम बंद करेंगे। और वो कैसे बंद होगा? देयर मे बी 2 सिचुएशन। व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग अमाउंट कैश फॉर डिफिशियंसी इन कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या तो डिफिशियंसी हो गई उस अकाउंट में, पार्टनर्स की डेफिशिएंसी आएगी तो पार्टनर्स को कैश लाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। डेबिट व्हाट? कम्स इन। फर्म में पैसा आएगा किसकी तरफ से? पार्टनर्स की तरफ से। व्हेन पेमेंट इज मेड टू पार्टनर फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो पार्टनर्स का ही पैसा फर्म के पास बन रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। पार्टनर को भी पैसे दे दिए। अब पैसे दे, जो सबसे लास्ट में अकाउंट बनेगा इट विल बी द बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए, 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट। बैंक अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देर आर सर्टेन अमाउंट विद वी आर राइटिंग इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इन डेबिट साइड opening balance, amount received from assets, amount brought by a partner, so जो ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, जो हमने रियलाइज़ किया है एसेट से, जो पार्टनर्स लाए हैं, वो सारे पैसे कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस की पेमेंट, और जो पार्टनर्स को हमने पे किया वो सारी चीज़ें कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। अब कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम, इफ बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, बोथ कैश भी है बैंक भी है, अप्रोप्रिएट टू ओपन एंड वन अकाउंट कन्वीनियंस, किसी एक को ही हम उसमें ओपन करेंगे। फॉर दिस पर्पस कैश अकाउंट शुड बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग कैश टू द बैंक। अब वाइस वर्सा नोट 2, after the claim of the partner are settled, balance should be left in the bank / cash। ठीक है? No balance should be left, no, 1 भी रुपया नहीं होना चाहिए। किसमें? बैंक या कैश में, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। लेट्स सी वन एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। यह आपके CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2020 का। आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है 2020 का। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द रीडिंग वी हैव टू कैलकुलेट द एंड कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चंस वन बाय वन, स्टेप वाइज। फर्स्ट, रीडिंग स्टाइल। X, Y and Z were partners
Profit sharing in the ratio of 1:2, half, 3/8, 1/8 is again challenging. अब आपको यहाँ सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऐसे केस में रेशियो क्या होगा. तो अमाउंट क्या हमारे पास, हाफ, 3/8, 1/8, हाफ, 3/8, 1/8. Take LCM of these three. 1, 4, 4. 2, 2. Then 2, 1, 1. 2, 2s are 4, 2s are 8. Now 1/2 multiplied by 8. 3/8 multiplied by the 8. And last 1/8 multiplied by the 8. 4. It's 4. It's 3. And it's 1. The ratio will be 4:2, 3:1. 4:3:1. 4:3:1 means 4/8, 3/8, 1/8. It will help us in calculation. ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर ली. हाँ, नेक्स्ट लाइन. Now come on the questions. It's asset side and liability side. Let's start with the asset side. Fixed assets realization में जाएगा. It will go to the realization. Write small r. Do the working while reading the question. Debtors r realization में जाएगा. Investment r जाएगा. Stock will go. Patents will go. Advertisement suspense. Now stop. एक और बात हमने आपको सिखाया हुआ है, रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स एंड कैश. कैश क्यों नहीं लेंगे, कैश इज ऑलरेडी रियलाइज्ड. एंड व्हाई वी विल नॉट टेक द फिक्टिशियस एसेट्स, इट डजंट हैज़ एनी रियलाइज्ड वैल्यू. ये समझने की बात थी. नाउ योर लॉजिक. आपको जिस भी बात से उम्मीद होती है कि पैसे आ सकते हैं वो सारे ट्रांसफ़र होंगे रियलाइजेशन में, और जिस बात से उम्मीद नहीं है कि पैसे मिलने वाले हैं उसे आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट विल नॉट बी ट्रांसफर. प्रीपेड एक्सपेंसेस जाएगा एंड कैश नो, कैश नहीं जाएगा. नेक्स्ट, नाउ कम ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स आउटसाइडर लायबिलिटी. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी कि एक्चुअली लायबिलिटीज़ इसकी कितनी है. जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा. बैंक लोन विल बी पेड एंड एक्स लोन, इट्स द पार्टनर्स लोन. एक्स का लोन है तो इसकी पेमेंट होगी कब, आफ्टर द आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल. देन एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल. नाउ कम ऑन द एडजस्टमेंट. Fixed assets were realized at 120% of 50,000 of the debtor approved debt. तो assets realized at 120%. तो assets की वैल्यू कितनी है, 9 लाख. तो 9 लाख 120/100. जो भी कैलकुलेशन आएगा आपका अमाउंट वो क्या होगा, 10,80,000 अप्रॉक्स. तो हमारा अमाउंट हो जाएगा किसका, बिल्डिंग का. देन वी हैव 50,000 फॉर द डेटर्स प्रूव्ड बैड. तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 280. इसमें से 50,000 बैड हो गया तो 230. द अमाउंट विल बी 2,30,000. क्रेडिटर एग्रीड टू टेक स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज. गुड, दे देंगे. एक्स एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. तो पार्टनर्स लोन में कैश नहीं दे के अब हम इन्वेस्टमेंट दे देंगे इसको. बैंक लोन इज़ पेड ऑफ टुगेदर विद द इंटरेस्ट 9% पर एनम फॉर 3 मंथ. तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसकी,
99% जो भी अमाउंट होगा। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर, अनरिकॉर्डेड के बारे में क्या कहा था आपको, अनरिकॉर्डेड वी हैव डिस्कस ना, अनरिकॉर्डेड का हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स से जो भी अमाउंट आएगा उसकी हमें एंट्री करेंगे किसमें, कैश में, रियलाइजेशन अकाउंट में। देन वी हैव कंपनसेशन टू वर्कमैन, कंपनसेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 24,000, यस, एंड द अमाउंट इज 40,000, तो 40,000 माइनस 24,000, ठीक है, द अमाउंट इज 16,000, तो 24,000 विल गो टू द liability paid by the realization through bank, and remaining 16,000 will be distributed to the partners in their profit sharing ratio. Then X was allowed a remuneration of 25,000, again realization expenses सिखाया है, ये expenses जो realization remuneration तो direct realization में जाएगा to bank realization expenses, the expenses of realization were to be borne by him and the expenses of realization were to be borne by him means partners. Firm paid realization expenses 10,000, अब फर्म ने चूँकि पेड किया है एंड borne by पार्टनर है, तो ये फर्म किससे लेगा, पार्टनर कैपिटल से चार्ज करेगा उस पर, इमीडिएट पेमेंट तो नहीं कर रहा पार्टनर, लेकिन पार्टनर को इसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, एक और चीज़, यदि आपको एंट्री याद नहीं आ रही हो तो उस केस में क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, आप सपोज करो ये बैलेंस शीट, इट्स अ बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड है और ये क्या है, एसेट साइड, और सपोज इस रियलाइजेशन, ओके, यहाँ हमारी सारी पेमेंट लिखनी है हमें और यहाँ हमें रिसिप्ट्स लिखना है। तो बैलेंस शीट में तो डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, रियलाइजेशन में डेबिट क्रेडिट। तो एसेट्स की पोस्टिंग जो हमें सिर्फ ट्रांसफ़र करनी है एज इट इज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियलाइजेशन कि कितना रियलाइज हुआ एसेट्स से, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स एंड कैश इंक्लूडिंग गुडविल, ट्रांसफ़र ऑल द एसेट्स हियर, कुछ भी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, मोटर है, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ ट्रांसफ़र एज इट इज़, एंड वॉट एवर द लायबिलिटी इज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ दे दें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, जो भी है, कुछ नहीं करना। यदि आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो डोंट गो इन डीप, बस ये याद रखिए कि अकाउंट्स में अकाउंटेंसी की जो मूवमेंट होती है वो किस में होती है, क्रिस क्रॉस में होती है, और जर्नल की मूवमेंट जिगजैग में होती है। आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया और फिर रियलाइजेशन डेबिट टू वर्क टू बैंक, तो बस यहाँ से एसेट्स उठा के सारी यहाँ आप पेस्ट करेंगे और यहाँ से लायबिलिटी उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। Is it clear to you? Now do the question. Here is the solution. तो creditors only posting 150, क्रेडिटर्स 1,50,000 पोस्टिंग है, ये बैलेंस शीट से एज इट इज़ आया है। बैंक लोन 40,000 बैलेंस शीट से ही आया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 कैसे आया, पहले कितना था, लेस करके आया हुआ है, लायबिलिटीज़ में लेस कर दी गई कि भाई इतना आपको बच रहा है। अब कैश अकाउंट, अब यहाँ से रियलाइज्ड है, एक छोटा सा निशान लगा दें। अब रियलाइजेशन हम एंट्री करेंगे, तो हमने कैलकुलेट किया था फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी आई थी, 10,80,000, क्योंकि 120% का इंक्रीज था। देन वी हैव डेटर्स विथ 2,30,000, हाउ इट कम, इनिशियली इट वॉज 280
and 50,000 of debtors proved bad. So now we have 230 and unrecorded investment is 16,000 and by X loan account investment. X को हमने क्या दे दिया है, लोन के बदले इन्वेस्टमेंट दे दिया, वो खुश हो गया, ठीक है, he has taken investment. Then fixed assets as it is posting, debtors posted, वो क्रिस क्रॉस जो भी बताया था क्रिस क्रॉस से आया है, बैलेंस शीट से, इन्वेस्टमेंट भी वहीं से आया है, एंड देन स्टॉक वहीं से आया है, इट्स ओनली पोस्टिंग, पेटेंट इज़ पोस्टिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज़ पोस्टिंग. हाँ, नाउ कैश अकाउंट, बैंक लोन, बैंक का लोन था तो 40,000 एंड 900 ऑफ इंटरेस्ट. टू कैश फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो पेमेंट हुई है इनिशियल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी थी 40,000 और 24,000 की हमारे पास क्या आई थी, लायबिलिटी आई थी, तो 16,000 बटेगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स. राइट नाउ पेमेंट ऑफ 24,000 फ्रॉम द रियलाइजेशन एंड देन एक्स कैपिटल अकाउंट फॉर रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन की एंट्री होगी 25,000. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी विल नॉट डू हियर द एक्सपेंसेस की यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी. तो प्रॉफिट आ रहा है और रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, 3 एंड 1. आफ्टर रियलाइजेशन वी हैव टू प्रिपेयर द एक्स लोन. लोन है, अगेन लोन इस साइड था, हम ऐसे लाए होंगे उसको. Here is the X loan account and by balance BD for the opening, it is carried from the balance sheet just with the principle of crisscross. By balance BD 50,000 and to realization investment is taken by the X. After that we have partners capital. Now be careful. Again by balance BD, it's came from the questions डायरेक्टली. क्रेडिट साइड में गिवन होगा, हमने यहाँ इसको लिख दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से. देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एज आई हैव टोल्ड कि दैट 16,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. तो 8,000, 6,000 एंड 2,000 हो गया 16,000, 1, 3, 4 के रेशियो में. देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन जो रेम्यूनरेशन 25,000 है किसको दिए जाएंगे, सिर्फ एक्स, तो एक्स में एंट्री होगी, बाकी दोनों में इसकी एंट्री नहीं होगी. एंड देन रियलाइजेशन प्रॉफिट, इट्स केम फ्रॉम द रियलाइजेशन, 2 से बाय आ गया, अगेन क्रिस क्रॉस 64,000, 48,000 एंड 16,000. नाउ कम ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में क्या आता है, लॉसेस आते हैं एंड पेमेंट आते हैं. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस is taken from the balance sheet. Then to cash realization expenses, क्या वर्ड था, borne by partner and paid by firm. Then 10,000. तो फर्म अब किससे ले रहा है, पार्टनर से मांग रहा है कि भाई दे दे हमारे पैसे. Now total the side to cash means the partners capital account debit to cash. तो फर्म इतना कैश तीनों को पे करने वाला है, एक्स को, वाई को, जेड को. अब फाइनल जो फिनिशिंग टच क्वेश्चन को आएगा वो आएगा आपके किससे, कैश और बैंक अकाउंट से. एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द बैलेंस ऑफ कैश टू बैलेंस BD given in the question 37,900. Then realization, assets realized, amount realized from the asset from the realization, and here we have the payment. Realization account for bank loan 40,000 of loan and 900 for the interest. Then by realization workman compensation 24,000 payment of liability against the workman compensation reserve. By X capital realization expenses 10,000. Okay, now the balance of the capital given from the capital accounts. This amount we have find out from the capital account and close the assets. Here you can see the total of debit of cash account is
13,63,900. Then total of credit side it again 13,63,900. This amount is same, that means question is correct. यदि ये अमाउंट नहीं मैच होता तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता. ओके. आई होप आप सबको समझ में आ गया. तो जब भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा उसमें रियलाइजेशन भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा और बैंक बनेगा. एंड बैंक शुड बी मैच. देयर शुड बी नो बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. हैव अ नाइस डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, your family, and thank you for watching the video. If you like, subscribe the channel. Stay home, stay safe. Good day.